Congratulations for completing vision board workshop successfully. So now I know that you're all waiting for that process of actually manifesting the vision board. I'm sure that you have started working on that, as I get so many messages कि ये फोटो ले लो, इसका क्या करो, ये कहाँ पे लगाना है. So I'm really very happy that the work is in progress. Okay, so now let's understand the new draft for your gratitude journal, then the letter which I discussed about, which you need to write once in a year, and the 3 minutes 2 minutes ka videos. So first let's change the gratitude format. So how it will be, like you have to just, as I know that your list must be final now, in the final stage, like the goals are now crisp and clear, because when we actually start, we keep on writing so many things, and by the time we identify pictures and we realize that अरे नहीं इसका इतना priority नहीं है, let me include this in my vision board. So now, as you have the crystal clear list of the goals, we will make the gratitude draft, like as if you have already received it. Okay, so for example, if you are thinking of having office with some specification, like location or whatever, square feet area इतना बड़ा चाहिए, ये area में चाहिए. Okay, so I want you to write like as if you already received it. Okay, so you can address it to maybe even universe or whoever uh, you know you follow, Sai Baba, Swami Samartha, Ganpati Bappa, Jesus, Allah, whoever it is. Okay, जिनको आप follow करते हो. ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, थैंक यू सो मच डॉट 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 that you have blessed me with such a wonderful office, and feel that feeling कि मेरे पास सच में ऐसा ऑफिस है. Okay, another example can be, if you want to have a vacation in Egypt. Okay, you must, if you have written, this is just for an example, if you have written that I want vacation in Egypt. So when you'll write the gratitude, you will write as if you have already experienced it. So thank you so much for such a wonderful trip. We really enjoyed, my kids enjoyed, we clicked lot of photographs. So as if anyways you are going to write it every day, so that the draft will change, but the format will be same. Okay, like the content will be same, you may write something else for that particular goal. Okay, so for office, you can write that the way I explained new office. So for the same office, I'm telling you that we had a IWBC meeting, or I had a business meeting today with 15 people in my office. So it was really great that I could accommodate all of them in my cabin. So अगर आपके कैबिन में 15-20 लोग बैठ रहे हैं, दैट मीन्स योर कैबिन इज़ बिग. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. आपको जो भी लिखना है कॉन्फ्रेंस में लिख सकते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में इतने बैठे थे और वॉट एवर. सो एवरी टाइम यू कैन कीप इट सेम भी रख सकते हो, लेकिन चेंज भी कर सकते हो, उसमें कुछ लिमिट नहीं है. ठीक है, सो ग्रैटिट्यूड में एटलीस्ट आप 10 सेंटेंसेस तो लिखो एवरी डे. ओके, सो इट इज़ नाउ ईजी दैट यू हैव टू जस्ट लुक एट योर गोल लिस्ट. आपके पास जो लिस्ट रहेगा गोल का, उसमें से देखना है कि चलो आज मैं ये आइडेंटिफाई करती हूँ, इसमें से मैं आज लिखती हूँ, एज इफ़ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड. सो द मोमेंट यू हैव दैट फीलिंग कि अरे हाँ ये मेरे पास है, आपका वाइब्रेशन इमीडिएटली हाई हो जाता है, एंड देन इट इज़ ईजियर फॉर यू टू मैनिफेस्ट दैट. ओके, ये फर्स्ट थिंग हो गया. आई एम श्योर दैट दिस इज़ क्लियर for the new draft for gratitude. Okay, now let's talk about the letter which I told you that you need to write only once. So हमको क्या करना है, we have to just take out our diary. अगर डायरी आपके पास डेट वाला रहेगा, मतलब 1 Jan 2 Jan ऐसे वाला जो डायरी रहता है, I want you to take out that डायरी, और whichever डायरी you're using, अच्छी वाली डायरी यूज़ करना. पुराने ज़माने के पुराने बुक्स मत यूज़ करना for your daily
आपको जो लिखते हो तो। ग्रैटिट्यूड के लिए अच्छा वाला डायरी लेना है, अच्छा वाला बुक लेना है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि यू हैव टू रियली यू हैव टू हैव द डेवलप द कनेक्शन बिटवीन दैट बुक एंड योर सेल्फ। एक अच्छा सा एट द मोमेंट यू विल होल्ड दैट, आपका इमीडिएटली वाइब्रेशन हाई होना चाहिए। बहुत सुंदर ऐसे बुक आपको यूज़ करना है। यस, कमिंग बैक टू द लेटर में क्या लिखना है कि अगेन यू आर ऑन 31st December ऑफ दिस ईयर, ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर 31st December, एंड यू आर लाइक एक्सपीरियंसिंग समथिंग कि पूरा साल में मैंने इतना मेहनत किया, ये मैंने सोचा था, अरे जैन में नहीं, ये मैंने सोचा था, और अभी आज 31st December में मैं आई एम होल्डिंग दैट thing or that you are there, you're already there, you already experienced that in the year. So that way you have to write. For example, I'll give you the same example so that you'll understand it easily. So जैसे मैंने ऑफिस का बोला तो you can simply write कि अरे यार मीनल, you are simply amazing. Up you had decided in the month of Jan that I would like to have that 1000 square feet का office, and now I'm sitting in that office. Yeah, so you have to write that way. So you have to appreciate yourself, you have to address it to Meenal, and you will end that with Meenal. So the letter should be dear Meenal, dear Meenal, you are awesome. एक दो लाइनें बहुत अच्छे अपने अप्रिशिएट हमको करना है खुद को, तो वो वाले डाल दो, ओके, एंड देन डू यू राइट जो भी आपके, देन इट इज़ वेरी इजी। गोल लिस्ट अपने पास रहेगा, जो गोल लिस्ट अपने पास है, सो यू टू जस्ट लुक एट द फाइनल वाला, हाँ, जिसमें हमने पूरा कैंसल वैंसल करके हमारे पास भाई फाइनल लिस्ट है, वो लिस्ट पकड़ के आपको वो लिखना है। अपने आप को शाबाशी देनी है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि यू डिसाइडेड एंड यू रियली वर्कड हार्ड फॉर दैट, एंड यू हैव टेकन लॉट ऑफ एफर्ट्स, जितना करना था आपने कर लिया, एंड यू अचीव्ड इट, सो यू हैव टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। तो वो शुरू में थोड़ा हमको लिखने के टाइम पे ऐसे लगता है अरे ये तो मेरे हाथ में नहीं है, बट ट्रस्ट मी, आप जैसे जैसे लिखते जाते हो एंड जैसे जैसे एवरी डे आप पढ़ने जाते हो, बिकॉज दिस यू आर सपोज टू रीड इट एवरी डे। आफ्टर आपका ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद एक बार पढ़ो, फिर ये लेटर पढ़ो एवरी डे। आप जब भी जैसे जैसे लिखना चालू करते हो, तो जैसे मैंने बोला था एंट एंड अपना एलिफेंट का स्टोरी, तो अपने सबकॉन्शियस को वो बिलीव होता जाता है, एंड देन इट मेक्स द सिचुएशन अराउंड अस सो दैट वी मैनिफेस्ट दैट फिजिकली। ओके, सो ये हमको करना है, कंसिस्टेंटली करना है। जैसे मैंने बोला कि 30 मिनट्स आपको निकालना है। इफ़ यू आर रियली कमिटमेंट, इफ़ यू कमिटेड, इफ़ यू रियली वांट टू अचीव वॉट एवर इज ऑन द विजन बोर्ड, सो दिस इज़ अ प्रोसेस, एंड अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता टू अचीव दैट वॉट एवर इज देयर इन द गोल लिस्ट। ओके, सो आपका ग्रेटिट्यूड का ड्राफ्ट आपको समझ में आया, देन लेटर का ड्राफ्ट आपको समझ में। तो लेटर में आई वॉन्ट यू टू राइट ईच एंड एवरी गोल अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ दैट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, और वैसे ही लिखना है। शाबाश मीनल, कैसे कर लिया, लेकिन कर लिया यार, तुमने जो बोला वो कर दिया। ओके, जैसे एज इफ हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं कि अरे यार हाँ, तुमने तो बोला था लास्ट ईयर यार कि ये मैं करूँगी, अपने बलबूते पे करूँगी, और तुमने कर दिखाया यार, ग्रेट। मुझे लगा नहीं था तू करेगी, लेकिन तूने किया। ओके, यू कैन ऐड दिस लेटर ऑल्सो, बिकॉज वी डाउट सो मेनी टाइम्स ना, खुद को डाउट करते हो कि पता नहीं यार करेगी नहीं करेगी। या सो दैट इज़ वन थिंग। एंड देन 3 मिनट्स का, जैसे मैंने बोला कि विजुअलाइजेशन टेक्निक करना है, मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं ऑलरेडी वर्कशॉप में, कि एज इफ़ हमको वो एक्सपीरियंस करना है। हाँ, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आई थिंक पेरिस का और इजिप्ट का ट्रिप बोला, आई डोंट रिमेंबर, तो एज इफ़ यू आर सिटिंग एट द एयरपोर्ट, यू आर टॉकिंग टू योर हस्बैंड, योर वाइफ, और यू आर जस्ट चेकिंग द किड्स कहाँ पे है, उन्होंने खा लिया कि नहीं, इतना लंबा फ्लाइट है, तो यू हैव टू ईट। तो जस्ट कुछ तो ऐसे अलग अलग जो मैंने दूसरा बुक बोला ना आपको, जो दूसरा बुक चाहिए जिसमें आप लिखोगे इंसिडेंट और द सिचुएशंस की, अगर मुझे ये मैनिफेस्ट में कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल बड़ा ऑफिस में कर लेती हूँ, देन यू विल हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। आपको वो मैनेज करने के लिए मे बी कुछ कॉफ़ी मशीन लेना पड़ेगा, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लेने पड़ेंगे, तो एज इफ़ कि आपके जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको लगाने पड़ेंगे। आप अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप डिस्प्ले कैसे करोगे, इसके लिए आपको स्टॉक लेना पड़ेगा। तो यू कैन जस्ट क्रिएट स्टोरीज अराउंड
एक छोटा धागा पकड़ के जस्ट क्रिएट स्टोरीज. ओके, अगर आप माइंड मैप, इफ़ यू आर अवेयर, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर, माइंड मैप फॉलो करना, आप गूगल पे करो तो यू विल अंडरस्टैंड कि माइंड मैप पकड़, मतलब एक छोटा धागा पकड़ के आपको इतना उसमें समझ में आता है, एंड देन यू कैन एलोबरेट इन डिटेल. ठीक है. सो दैट वे इन द सेकेंड बुक विच आई टोल्ड यू, उसमें आपको ये सिचुएशन जस्ट लिखने हैं, सो दैट आपको विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, विजुअलाइजेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा. सो एक धागा पकड़ के वी कैन मेक स्टोरी अराउंड इट ना, वी आर वेरी स्मार्ट इन दैट फील्ड. तो एक छोटा सा धागा एक है कि इजिप्ट का ट्रिप, तो एयरपोर्ट है, देन होटल है, देन स्विमिंग पूल है, खाना पीना है, घूमना है. हाँ, तो आपके पास फ़ोटोग्राफ्स रहेंगे, तो जो मैंने फ़ोटोज़ बताए थे आपको, तो वो फ़ोटो देख के भी आपको आइडिया आएगा कि अरे हाँ, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे मेरा हस्बैंड है, यहाँ पे मेरी वाइफ है, और वो फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं मेरे बच्चों के साथ, एंड आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस, मैंने ये परफ्यूम डाला है. देर आर सो मैनी थिंग्स, योर क्रिएटिविटी इज़ अनलिमिटेड. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स विच आई हैड टोल्ड यू मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द वर्कशॉप, की बाद में बताऊँगी. सो दिस इज़ द प्रोसेस. ठीक है. सो जब भी आपका पूरा विजन बोर्ड बन जाएगा, उसके बाद ओनली यू विल हैव दिस ड्राफ्ट, बिकॉज अगर बीच में आप करोगे तो इट विल कीप ऑन चेंजिंग. तो जैसे ही आप पूरा फ्रीज करते हो, द लिस्ट फ्रीज हो गया, गोल्स लिस्ट हो फ्रीज हो गए, देन फोटोग्राफ्स फ्रीज हो गए, अफर्मेशन फ्रीज हो गए, उसके बाद आपको ये एक्चुअली करना है. तो ग्रैटिट्यूड तो डेली है, लेटर आपको एक ही बार लिखना है, तो चाहिए तो आप थोड़ा टाइम ले लो. पूरा विजन बोर्ड बनने के बाद यू कैन जस्ट लुक एट द विजन बोर्ड एंड यू कैन राइट द लेटर, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू राइट इट अगेन एंड अगेन. आई वांट यू टू राइट ओनली वंस. ओके. एंड ग्रैटिट्यूड एवरी डे, विजुअलाइजेशन एवरी डे, नॉट मोर देन 3 to 4 फिल्म्स एवरी डे. तो 2-3 मिनट्स के जो भी विजुअलाइजेशन है कनेक्टेड टू योर गोल्स, तो एक दिन में उतने ही लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ प्रायोरिटी रहेगा कि ये तो मुझे होना ही है, तो दैट यू कैन टेक मे बी 3 to 4 times अ वीक. ओके. और एक आध आपका रहेगा कि हाँ ये ठीक है, ये इतना प्रायोरिटी नहीं है प्रायोरिटी, तो आप हफ्ते में 2 बार, और हफ्ते में 1 बार, और 2 हफ्ते में 1 बार, ऐसे भी आप ले सकते हो. सो इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप कौन सा आज ले. लेकिन अगर वो आप अच्छे से लिखते हो, देर वॉज माई वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसने पूरा गूगल कैलेंडर पैक कर दिया था. ओके. एक बार बैठ के, आधा 1 घंटा बैठ के, शी हैड मेंटेन्ड गूगल कैलेंडर कि आज मुझे ये 2 चीज़ें तो फिक्स है, ग्रैटिट्यूड लिखना है एंड देन मुझे लेटर पढ़ना है. लेकिन विजुअलाइजेशन के लिए शी सिंपली गेव द स्टार्स. ओके. ये थोड़ा एडवांस वाला एडवांस मैनिफेस्टेशन वाला टेक्निक मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो लिस्ट है ना, उस पर आप स्टार दे दो. ओके. 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार. सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी. तो 5 स्टार है तो उसका तो 4 बार तो आपको हफ्ते में करना ही है, बिकॉज दैट इज़ द प्रायोरिटी. ओके. सो ऐसे भी हो सकता है कि कुछ आप फिर महीने में 2-3 बार कर रहे हैं. सो इट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल. फाइन. सो आई होप, no, I'm sure that you have understood this process, and that's it. So I just want you to get back to me personally, and we'll just finish that vision board का. बहुत सारी मेहनत लगती है, मुझे पता है, बट खुद के लिए करना, इट इज़ वर्थ. फाइन. हैप्पी मैनिफेस्टिंग.